Yes, Pete. So we are going to start with answers of comprehension passage number 1. Okay. So first of all, who will give me answer of passage 1? First question, Harshita. Harshita बेटे, question पढ़िए and answer बताइए जल्दी से, quickly. Give 2 reasons responsible for the imminent extinction of parrots. Answer: reasons responsible for the imminent extinction of parrots are because parrots are fast losing their habitat and exported as pets to Europe and North America. Yes, this direct answer is given in your book. Okay, so it is two reasons for imminent extinction. Imminent का meaning check किया किसी ने? Imminent का meaning check किया? This word was new for you. Did you check the meaning of imminent? हाँ जी, किसी ने check किया? You can type in chat box if you have searched for its meaning. हाँ जी, किसी ने नहीं चेक किया, बट आपने देख लो, बिना आपको वर्ड का मीनिंग पता आपने आंसर दे दिया। बेटा दिस इज रॉन्ग, मैंने आपको पहले भी बोला था ना। इमिनेंट का मतलब है लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, मतलब जो चीज होने वाली है उसके लिए हम यूज करते हैं इमिनेंट। तो जो ये एक्सटिंक्शन, उनके गायब होने के 2 रीजंस क्या हैं? डायरेक्ट आंसर इज गिवन हियर, इट इज फर्स्ट इज दैट parrots are fast losing their habitat, and the second reason is many of them are being exported as pets to Europe and North America, right? So this is how you are to write answer. Second answer, Ayan will give me answer. हाँ जी Ayan, second question पढ़िए और आंसर बताइए जल्दी से। Ayan जल्दी से, don't waste time. Yes बेटे, quickly. मैम मुझे पता नहीं इसका आंसर। वेरी गुड ओके, म्यूट योरसेल्फ। कोई बताएगा तो ध्यान से सुनना है बेटा, म्यूट योरसेल्फ नाउ। ओके, अब मुझे शुभांशु गुलाटी बताएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन गिव आंसर क्विकली। शुभांशु गुलाटी What has yes ma'am. हाँ जी What बोलिए। has remained a big mystery even to the scientists? हाँ जी, Parrots have remained a big mystery that how many parrots can imitate human speech. yes, its answer is how many parrots can imitate the human speech. It has been a big mystery for the scientists. ये भी डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा कि कितने पैरट्स हैं जो ह्यूमन स्पीच को इमिटेट का मतलब क्या है? कॉपी कर सकते हैं। अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता चल सका कि कितने पैरट्स ऐसे हैं, कितने स्पीशीज ऐसे जो कर सकते हैं, कितने तरह के पैरट्स हैं जो ह्यूमन स्पीच को इमिटेट कर सकते हैं। ओके, थर्ड आंसर इट इज थर्ड आंसर मुझे देगा हेवन विल गिव मी थर्ड आंसर क्विकली। हेवन विल गिव मी थर्ड आंसर क्विकली। Heaven, beta, quickly unmute yourself, switch on your camera, unmute yourself and then give answer. Okay, and I am noting down the names, those who are not responding. Very good. Okay, don't give answer. Right, Nitima jaldi se third का आंसर, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए बेटे। Why is the parrot a favorite pet? Parrot is a favorite pet because it can imitate human voice. Okay, any other reason? Yes, Yajat. Yes, Yajat. Ma'am, can I? Yajat. Ma'am, let's answer a question. Why is the parrot a favorite pet? The parrot is a favorite pet because it is liked to be tamed for its grace, manners and attractive appearance. बेटा liked to be tamed का मतलब ही ये है, ठीक है? उसको क्यों पाला जाता है, तो ये हमने, अब देखो यहाँ पे इन्होंने they have mentioned liked to be tamed, आपने क्या किया? वो लाइन को भी इंक्लूड किया, उसको नहीं करना हमने इंक्लूड। यहाँ पे क्वेश्चन है why is the parrot a favorite pet? तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या, क्यों है वो फेवरेट पेट? क्योंकि इसका मैनर्स, इसके ग्रेस के कारण ये फेवरेट पेट है ना।
तो बीच में हमने लाइक टू बी टेम्ड फॉर इसको ऐड नहीं करना. तो यू विल राइट आंसर द पैरट इज अ फेवरेट पेट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेस, मैनर्स एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस. राइट, दिस इज हाउ यू आर टू राइट. ये टेम्ड वाली लाइन बीच में नहीं लिखनी है. ओके, इज इट ओके? ओके बेटा, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हाँ जी, जसनूर सिंह जल्दी से बोलिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटे, जल्दी से बोलिए. Ma'am, the parrots become greatly attached to a person and start copying sounds they hear. यस, कॉपिंग साउंड्स दे हियर, कि जो साउंड्स उनको सुनती हैं उनको कॉपी करने लगते हैं. वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट भार्गवी नेक्स्ट. हाँ जी भार्गवी, Children enjoy hearing the parrot repeat their words. यस, बच्चों को अच्छा लगता है जब पैरट्स उनकी आवाज को, जो वो वर्ड्स बोलते हैं उनको रिपीट करते हैं. उस दिन भी मैंने बताया था ना, रियली वी फील गुड. जब जो हम बोल रहे हैं, मिट्टू बोल रहे हैं, द पैरट इमिटेट्स दैट थिंग एंड दे स्पीक द सेम. ओके, नेक्स्ट बेटे, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग. जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आपने पैसेज में से बेटा, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क कैन आई. इट इज नॉट कैन आई, इट इज मे आई, एंड डोंट डू दैट. आई विल आस्क माय सेल्फ. ओके, हाँ जी. तो अभी आपने इसके ऑपोजिट, अच्छा उससे पहले, बिफोर दैट जस्ट टेल मी, ऑपोजिट के लिए एक और वर्ड क्या होता है? ऑपोजिट के लिए एक और वर्ड क्या होता है, पता है किसी को? पता है? इट इज एंटोनिम. आप ये भी लिख लो, ऑपोजिट के साथ ब्रैकेट में लिखो, इट इज एंटोनिम. ANTONYM. कहीं पे किसी भी पैसेज में वी कैन आस्क यू टेल एंटोनिम ऑफ दिस. एंटोनिम का मतलब भी होता है ऑपोजिट. ओके, हाँ जी बेटे. तो इसका ऑपोजिट, साइलेंट का ऑपोजिट, पैसेज में से जो वर्ड है वो ढूंढना अपने पैसेज में से. So it is okay. Students are giving response in the chat box. You can now type because it is one word answer. So it is noisy. Yes. Silent का शांत, noisy आवाज करना. Next, skinny. Skinny का मतलब बहुत दुबला पतला. तो skinny का क्या होगा? Yes, it is fleshy. FLESHY. This word is used for the tongue of the parrots. Okay. So it is fleshy. Good. नेक्स्ट, डी पार्ट है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर सिमिलर इन मीनिंग. अब जो वर्ड्स सिमिलर होते हैं, सिमिलर, उनके लिए भी हम एक वर्ड यूज करते हैं. दैट इज, यू हैव रेड दैट वर्ड इन फोर्थ आल्सो. इट इज सिनोनिम. इट इज सिनोनिम. नोट इट डाउन. अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे ये वर्ड, जहां पे सिमिलर वर्ड्स हमने कहा है ना, तो सिमिलर वर्ड के लिए इन ब्रैकेट राइट डाउन, इट इज सिनोनिम. इट इज सिनोनिम. यस, जस्ट नोट डाउन बेटा. ऑपोजिट इज एंटोनिम एंड सिमिलर इज सिनोनिम. सिनोनिम नहीं होता ये, इट इज सिनोनिम. एंटोनिम एंड सिनोनिम. Okay, now who will give response for this thing? Angel. Yes, with the Angel. Good looking. Good looking ka? Opposite of good looking is attractive. Yes. Not opposite. Beta, similar word. It is similar word, not opposite. Okay. Synonym iska kya hai? That is attractive. Yes, very nice. Attractive. Okay, next it is Bharti. Next beta word है copy. Copy word. Imitate. Yes, it is imitate. double M नहीं डाल देना. It is imitate. Okay, so with this we complete passage number 1. Okay, हाँ जी बेटे. Yes बेटे. Avni. Now you will start with beta passage number 2. Start reading passage number 2.
Seaweeds naturally grow underwater in seas and oceans. They are simple, ordinary plants having no leaves, roots, and stems. ओके On वेट the वेट other वेट hand, वेट ओके वेट 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 बेटे अच्छा सी वीड्स मतलब आपको पता है वीड्स आपने पढ़ा हुआ ना साइंस में वीड्स क्या होते हैं पढ़ा हुआ कहीं पे वीड्स क्या होते हैं वीड्स होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं जो प्लांट्स अपने आप ही जंगली जिसको हम बोलते हैं ना जंगली प्लांट जिनका कोई यूज नहीं होता वो अपने आप खेतों में उग जाते हैं ठीक है तो ऐसे ही सी वीड्स मतलब जो समंदर में अपने आप उग जाते हैं उनकी बात की गई है नेचुरली ग्रो अदरवाइज क्या कोई भी क्रॉप होती है वी सो द सीड और उसके बाद वो उगता है तो ये जो वीड्स होते हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं तो यहाँ पे सी वीड्स की हम बात करें जो समुद्र के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप ग्रो करते हैं बेटा म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ हाँ जी बेटे so they are simple ordinary plants having no leaves roots and stems अब ग्राउंड पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स भी होती है स्टेम भी होती है बट इनके जो सी वीड्स होते हैं इनके ऐसा कुछ नहीं होता हाँ जी बेटे नेक्स्ट कंटिन्यू करो अवनी on the other hand, they have a root like a snake that attaches the weeds to rocks. yes Like अब इसकी most जगह land plants, वेट बेटे अब जो नॉर्मली जो ग्राउंड पे हम प्लांट्स लगाते हैं उनकी रूट होती है उसके कारण वो वहां पे रहते हैं ना वो अपने ग्राउंड में चिपके रहते हैं तो यहाँ पे क्या है ये जो सी वीड्स है इनका क्या है ऑन द अदर हैंड कि इनकी रूट्स वगैरह नहीं होती इनका क्या होता है दे हैव अ रूट लाइक बेस उनका एक बेस सा होता है जो रूट का काम करता है नेम्ड होल्ड फास्ट मतलब जो कि चिपका के पकड़ के रखता है उनको वो जो सी वीड्स होते हैं उनको वहीं पे फिक्स करके रखता है दैट अटैचेस द वीड्स टू रॉक्स और ये जो होते हैं ना ये रॉक्स पे उगते हैं जस्ट इमेजिन कि जो लैंड पे प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में होते हैं ना ये रॉक्स के ऊपर जो सी के अंडर सी जो रॉक्स होती है डिस्कनेक्शन हो रही है बेटा वेट प्लीज हैव पेशेंस बेटे कोई बात नहीं आप सबके पास ये पेज है यू कैन रीड इट योरसेल्फ आल्सो ओके हाँ जी नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू हितेशी अवनी बेटे म्यूट योरसेल्फ हितेशी यू प्लीज कंटिन्यू हितेशी बेटे यू प्लीज कंटिन्यू okay ma'am like most land plants, seaweeds also convert the sun's energy into food through photosynthesis. यस आपको They पता है absorb Wait, water बेटा, directly. वेट बेटे आप एक सेंटेंस बोल के चुप कर जाया करो लेट मी एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं तो यहाँ पे भी लाइक मोस्ट लैंड प्लांट्स जैसे लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं वो जैसे अपना खाना बनाते हैं वैसे ही सी वीड्स आल्सो कन्वर्ट द सन्स एनर्जी अब प्लांट्स पे सन एनर्जी पड़ती है तब वो अपना फूड कन्वर्ट बनाते हैं ना सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ऐसे ही ये सी वीड्स भी करते हैं यस बेटे कंटिन्यू हितेशी बेटे कंटिन्यू Okay, ma'am. With its dissolved carbon dioxide and use the sun's rays that penetrate the water surface to catalyze the reaction. हाँ जी बेटा पेनिट्रेट वर्ड है पेनिट्रेट अब क्या है वो जो सनलाइट जो आती है वो पानी में से उन तक पहुंचती है पेनिट्रेट मतलब किसी मीडियम के थ्रू अंदर तक जाना उसको चीरते हुए जाना अब आपने डिस्कवरी चैनल पे ऐसा देखा ही होगा कि कैसे सनलाइट पानी में से नीचे तक चीरती हुई जाती है तो ऐसे ही ये रिएक्शन कैटेलाइज मतलब कि उस रिएक्शन को होने के लिए वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि जिस वे से उन्होंने अपना प्लांट्स ने जो सी वीड्स है उन्होंने अपना खाना बनाना तो सनलाइट पानी में से होती हुई उन तक पहुंचती है हाँ जी नेक्स्ट Seaweeds do not have roots as they are not necessary for them. Okay, ma'am. For plants growing and surviving on land,
roots are required to take in water and food. Continue. But with seaweeds, the case is altogether different. They can absorb water and food anywhere on their surface and thus get everything they need from water all around them. यस, अब लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स होती हैं, उसमें पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं. एब्सॉर्ब मतलब वो चूस लेते हैं पानी. इट इज नॉट एब्सॉर्ब, इट इज एब्सॉर्ब. ठीक है, तो वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे उनका पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वगैरह वो सब चलता है. बट ये जो पानी में जो होते हैं ना, इनकी रूट्स तो होती नहीं, जो सीवीड्स होते हैं, तो इनके जो चारों तरफ पानी होता है, ये उन्हीं से ही सारा अपना काम करते हैं. जो उनके चारों तरफ उनके सरफेस पे जो पानी होता है, उसी से ही ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो भी खाना वाना जो सीवीड को अपने लिए चाहिए, that is done with the help of that water which is there all around them. हाँ जी, next. Seaweeds have growths at the bottom that look like roots. They use them to hold onto rocks and other objects in the water. This helps them from being carried away by currents. The plants growing on land have. Wait, ये जो seaweeds होते हैं, seaweeds have growths at the bottom that look like roots. जो seaweeds होते हैं उनके bottom, उनके जो नीचे है ना, वहां पे कुछ ऐसा growth होती है, वो लगता है रूट की तरह काम करता है. और वो क्या करता है, उनको उस जगह पे फिक्स रखता है, so that they are not carried away by currents. Currents मतलब समुद्र के अंदर लहरें आती है ना, तो वो जो ये नहीं कि तेज लहर आई तो ये सीवीड निकल के वहां से चला गया. नो, दैट थिंग होल्ड्स दैट. वो जो उनका बॉटम पे जो कुछ चीज ऐसी होती है जो रूट का काम करती है और उसको सीवीड को वहीं पे फिक्स करके रखती है. हाँ जी, नेक्स्ट. The plants growing on land have flowers and the flowers make seeds. Have no flowers. How do they then continue with their production cycle? They have lumps called spores and new seaweeds grow from them. Yes. अब उन्होंने फिर से वो इनका कंपैरिजन लैंड के प्लांट से कर रहे हैं, जो लैंड पे प्लांट्स है उससे है. दैट इज this helps them from being carried away by currents. The plants growing on land have flowers. आपने देखा है ना, अब आपके घर के आसपास में जो प्लांट्स होते हैं, चाहे सब्जियां भी लगती, पहले वो फूल होते हैं फिर उससे सब्जी बनती है. ठीक है, तो ये क्या है, द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड हैव फ्लावर्स एंड फ्लावर्स मेक सीड्स. फूल होते हैं, फूलों के ऊपर आपने कभी देखा हो तो वो सीड्स बनते हैं, उससे और फिर ये बनते हैं फ्लावर्स, और जहां जहां वो सीड गिरता है वहीं पे और फिर प्लांट्स उगने शुरू हो जाते हैं. These seeds give birth to new plant, but seaweeds have no flowers. तो फिर समुद्र में इनकी ग्रोथ कैसे होती रहती है? अब यहाँ पे तो वो जो उसका फ्लावर का पार्ट गिर गया, जो वहां पे सीड गिर गया, तो नए प्लांट्स वहां पे उग गए. आपके गमले में ही देखते हो, आपने एक रूट लगाई होती, वहां पे चारों तरफ कितने और आ जाते हैं. तो वो कैसे होता है, वो अपने आप सीड जहाँ गिरे वहां पे प्लांट ग्रो कर गया. बट सीवीड्स के लिए उनके तो फ्लावर्स ही नहीं होते, तो वो कैसे ग्रो करते हैं? So it is how do they continue with their production cycle? मतलब कि एक से ज्यादा फिर वो सीवीड्स कैसे बढ़ते जाते हैं? तो उसका आंसर क्या है? They have lumps called spores. कि उनके lumps मतलब कि वो कुछ ऐसे टुकड़े से उनके होते हैं, उनके कुछ पार्ट्स होते हैं. lumps मतलब कि जैसे लंबे लंबे पतले पतले ऐसे ना कुछ पार्ट्स उनके होते हैं, called spores. उनको हम कहते हैं spores. And new seaweeds grow with them. वो spores के साथ ही, वो जो spores हैं उसके साथ ही अपने आप नए नए seaweeds बनते जाते हैं. Okay, so this is all about the passage. Now what you need to do is you are to find their answers. One thing more बेटे, now you are in 5th class. Don't expect कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिलेगा. Somewhere you need to change the formation of the sentence. जिस टेंस में जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका आंसर भी उसी वे में होना चाहिए. सो इसके लिए व्हाट यू नीड इज, आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को आपने पढ़ना है,
एंड डोंट थिंक कि डायरेक्ट लाइन वो उठाई दैट विल बी आंसर. समवेयर यू मे नीड, हो सकता है कि आपको अब वो लाइंस को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़े, कुछ चेंजेस करनी पड़े, सो दैट यू कैन गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो अब बड़े हो रहे हो ना धीरे धीरे, तो फिर लेवल तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का इंक्रीज होगा ही. तो ऐसे आपने करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आपका आंसर होना चाहिए. ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो वो चेंजेस आपने करनी है. एंड दिस पैसेज हैज ABCDE पार्ट्स. आपने यहीं पे इसी पेज पे सॉल्व करना है एंड विद पेंसिल. डोंट यूज पेन, अदरवाइज यू विल स्पॉइल ऑल द पेजेस. इसके ऊपर आपने पेंसिल से बेटा सारे आंसर्स लिखने हैं. ओके, सो नाउ आई होप कि आपको ये जो पैसेज है इट इज क्लियर नाउ.